Hi everyone, welcome to DK Talkies. We must have heard about crystal healing. However, it is much more than just the practice of crystal healing. It's all about energy alignment and also about self discovery. Today, let's hear more about crystal healing from the co founder of Cold Lava Crystal Studio, Saurabh Masurkar. Hi, Hi Saurabh, how are you doing? I'm good. How are you doing? Very well, thank you so much. It's a pleasure. Great. So, Saurabh, tell us about your journey into crystal healing. Quite funny actually, because my introduction to crystals was right when I was a small child. You know, Okay. I was born in the 80s, and I was raised in Mulund, one of the suburbs of Mumbai, and I had nobody to play with at my age. And around me, everything was under construction. New buildings were coming, new towers were coming. And at that point of time, I remember the sand, the construction sand used to come from West Bengal, and it used to have a lot of these colorful stones and pebbles into it. I used to collect them, of course, without knowing anything because that was my only source of entertainment. Much later in the 90s, my parents got me this set of books called Encyclopedia. This was much before the internet was invented. And it was my pastime. You know, I used to open the book and I used to check what color stone I have and match it with something that I see the picture. And I gave names to those crystals, even without knowing that some of them might be right, some of them might be wrong. And that was lost there about it. Much after, around 2004, I started working, began my professional journey in call centers and things like that. And that is when again this trend was catching up, that everybody were wearing semi-precious stones and they were wearing crystals and things like that. And my curiosity began all over again, and all the memories and the names of the crystals and the meanings and attributes that I had learned and studied came. And there were a lot of several instances that kept on happening through and throughout. And I think it was just about 10 years ago where I formally started practicing crystal as a therapy, as a healing modality, and as you said, a life transforming journey. Great. Thank you for sharing that with us. So, how is this crystal healing different from gemstones? Is there a difference? Not really. Precious stones which have more value are called gems. Gem is a particular name given to a particular cut or a particular luster or a particular clarity of a particular crystal, for that matter. Sure. Everything is minerals at the end of the day. If you go to see from technical commercial perspective, they're just minerals formed. Basically, silicon is a basic of all of it. But if you go by energy perspective, everything is energy. Everything is a vibrational frequency. A clear quartz, a diamond, an emerald, a ruby, or a citrine. All of these are energies. Yeah. So, how many crystals are there in the universe? As far as I know, there are a few thousand. To be very honest, I won't be able to give you a precise number of those, but thousands and thousands and thousands, many of them. In fact, there are a lot of crystals which are not even from Earth. And we'll Really? talk about that later. Great. So that brings me, in fact, to my next question. You said some crystals are not from this planet. So tell us something more about it. So if we go to see, right, our Earth has been through a lot of extraterrestrial contacts. We talk about meteoroids and asteroids, and we know a lot of lakes which are formed because of it. So there is one such crystal called Moldavite, for that matter. It's a place near Russia called Moldavia. And a couple of thousand years ago, there were a lot of these asteroids that came from space, don't know which planet or where they came from. And they left these little brittle pieces of mantle, and this beautiful green color crystal called Moldavite is formed. It's considered to be one of very high frequency crystals. And that way, we don't really know, right, what came from where, or, how these crystals were formed. Like some of them, of course, scientifically we know, like this piece of quartz, we know over here. But a lot of the origin of these crystals, such as shungites, moldavites, they are not from Earth. They came from space through meteoroids. So they are still there. Yes, And of course. do you recommend those to your clients as well? Sometimes, not always. One part, these crystals are very rare and they're very expensive. Secondly, when we talk about the energy spectrum of the crystals, we don't really know certain crystals. Like, we talk about a lot of energies. A lot of energies are unexplored, for that matter. When I was told about Moldavite, one particular crystal, I was told that not everybody can handle the energy of this particular crystal. And initially, when I got these pieces, it was okay, but they really brought good changes to me. But then there are a lot of people I know, my friends or somebody whom I've shown, that they're just like, we can't even be around this piece. So it's not something that I generally recommend to people unless they're collectors or curious to have those. So what's the benefit of keeping a crystal with you? So I'll tell you what exactly crystals are basically, right? Crystals are a vibrational frequency. Okay. We all are surrounded by vibrations. Yes.
our emotions are vibrations. Yes. Right now, we're sitting and having a conversation. We are in a certain vibrational frequency. Say, for example, somebody comes and starts shouting. It might make you angry. It might make you upset. The vibration changes. Everything is energy. Crystals are a stable form of energy. We are not. We are happy. Suddenly somebody tells you something. We are from happiness to anger. Fraction of a second. We wouldn't take time. Yes. But crystals are stable. Crystal energy does not get impacted by the surrounding that very drastically. Okay. And when you keep crystals with you, which is a stable source of energy, it brings a balance. Okay. It calms your volatility down. It brings in some sort of a frequency shift over there, and it helps to remove any kind of unwanted energies from there. It could be any kind of diseased energy, it could be emotional imbalance, it could be physical ailment, anything. And hence, you recommend that we should also keep a crystal with ourselves that protects us, that guides us, right? Absolutely, and everything for that matter, depending on your requirement. If you're confused in your life, you can look for crystals which will guide you. If you have energy imbalance, you can look for crystals which will help you there. If you have a certain illness or some situation you're dealing with, look for crystals which will help you balance that thing. I, for example, I'm wearing my crystals. I wear my clear quartz always with me. It brings in clarity to my life. It is something that expands aura. It always keeps me hungry for learning new things and exploring new things. I can see that, I'm sure. What was your inspiration behind Cold Lava Crystal Studio? So if I go to say, Cold Lava Studio was not my personal inspiration. It was Priyanka, one of our partners. As I said, I was always connected to crystals since my childhood. I used to always collect them. I used to play. And then I was always fond of one thing as a hobby, jewelry making. Okay. I used to make these pieces of jewelry, bracelets, necklaces, anything that I would get, from anything that I would get for that matter. It was a hobby. And then Priyanka one fine day just came and said, like, बना ही रहे तो क्यों नहीं इसका कुछ हम करें, कहीं डिस्प्ले करते. And playful मैंने कहा कहाँ करेंगे, क्या ही करेंगे. And she was like, चलो कुछ करते हैं, let's start with the collection. We started working on the collection. We came up with this, few pieces of jewelry and things like that. And suddenly we got a call from one of our friends saying that he's from Ahmedabad, saying यहाँ पे कुछ free हो रहा है. Let us do a stall if you guys are ready with some collection, because we were talking about what we are doing and all that stuff. We went over there and oh my God, the first collection was super hit. We were not expecting that kind of thing. So the kind of designs that came out, the kind of work that we were able to present, it was really good. And that's how it all began. COVID hit. Of course, there was no market for jewelry and things like that. But one of the things that we were doing was making jewelry from crystals. Now, this is where I talk about the mystic energies, right? Whatever the true calling is, universe will show you the direction. Correct. So there was this time that we were looking out for getting rid of the stock because we were not able to, we were piling on a lot of things that we had invested into. We went online and started selling the products, and that's when people started asking the meaning behind the crystals. Correct. And that is when everything connected for me. Why crystals came in my life, why that encyclopedia came in my life, why did this knowledge come to me. And that's when I started studying even deeper, and we started correlating with the meanings and the experiences that people started getting back to us, that after wearing the crystals, what started happening to them. And that is when I started getting formally into crystals, full-fledged into it, and that's how Cold Lava began. In fact, that time we didn't even have the name to the particular brand, so one of our friends just suggested the name, and that's how it went. Very inspirational that was. So how do you ensure the crystals that you bring into the Cold Lava Studio are ethically curated? So one aspect of that is we of course buy from licensed and registered traders, and when we talk about licensed and registered traders, these come from mines which are governed by some sort of a bodies over here. Now, ethical mining or unethical mining does not happen normally with semi-precious stones. A lot of it happens with precious stones like diamonds or tanzanites or blue sapphires or kainites or something of those sort. We do deal with those stones as well, but again, as I said, we buy them from reputed sources. They're government certified. The expensive stones that we have, they are certified by GIA or GII, and these bodies know where the origin of the stones and how it has come to you. Okay. So for example, if I come to you and if I tell you, Saurabh, क्या आप मुझे एक क्रिस्टल दे सकते हो, तो क्या आप मुझे ऐसे ही क्रिस्टल दे दोगे या उसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल भी नहीं. I'll tell you what exactly. जब मुझे किसी को क्रिस्टल्स रेकमेंड करने होते हैं, तो एक होता है कि उनके चैलेंजेस. They tell me कि ठीक है, मुझे फाइनेंसेस की इशू है, या मुझे हेल्थ की इश्यूज है, या मुझे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है. That is a superficial problem about it.
But then I need to understand a little bit deeper about why that problem exists into you. Got it. Right? Say for example, अगर आपको confidence नहीं है, Hmm. confidence इसलिए भी नहीं है because आपको उस चीज का experience नहीं है, या फिर confidence इसलिए भी नहीं है क्योंकि बचपन से आपको किसने डराया है उसके बारे में. Okay. Confidence शायद इसलिए भी नहीं है because it's a personality trait to not trust in yourself. तो exactly वो क्या reason है जिसकी वजह से confidence नहीं है. तो अगर मेरे पास 4 लोग आते हैं for confidence, I will not give them the same crystals. अगर किसको चाइल्डहुड ट्रॉमास है तो उनके ट्रॉमास के ऊपर वर्क करना जरूरी है और साइमल्टेनियसली आई गिव देम डिफरेंट क्रिस्टल्स टू वर्क विद. अगर किसी को सेल्फ डाउट है तो उसको सेल्फ लव के क्रिस्टल्स होने चाहिए. अगर किसी को बिहेवियर ट्रेट है तो उसको शायद क्रिस्टल्स की जरूरत भी नहीं है. बहुत सारे बार क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं, आई टेल देम यू डोंट नीड क्रिस्टल्स, पहले चाहिए इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करिए. लेट्स meet again after a couple of months after you brought that change and then let's talk about crystals. तो आप खुद को चैनलाइज करते हो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए? बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है आपने, चैनलाइज करना. आई डोंट नो इफ दैट इज द वर्ड अबाउट इट, बट एक टेक्निकल स्टडी तो है, मैं वो नहीं डिनाई करूंगा. थियोरेटिकल स्टडी इसके पीछे बहुत है, बट बहुत सारे बार मैं आपको कहूंगा कि बहुत सारे बार इंट्यूटिव चीजें होती है. कई बार पता नहीं क्यों कोई क्रिस्टल मुझे किसी के लिए आता है, या पता नहीं क्यों किसके लिए मैं कोई क्रिस्टल recommend करता हूँ. So maybe there is some sort of a connection between that person, maybe me, and if that is what a channel is, then yes. Okay, great. How does crystal healing blend with the powers of universe? Oh my God, what a question. So दीप्ति, दो चीजें हैं. हमारी जो रियलिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना हमारे आजू बाजू में, वी आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग इट आवरसेल्व्स. हम खुद की रियलिटी क्रिएट करते हैं. Okay. कैसे? इस वक्त आप यहाँ पे बैठे आप क्या सोच रहे हो, ये डिटरमाइन करेगा आपकी लाइफ में अगला कॉन्सिक्वेंस कौन सा आएगा. हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस, 3 ऐसी चीजें हैं which determines everything in our life. Right? I'll give you a practical example. कई लोग क्योंकि विचार तो होता है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स वेट लूज करना है, थॉट इज एनर्जी, पोटेंशियल है, वो थॉट है इसलिए वो कुछ कर पाएंगे. कई लोग अपने थॉट्स को अपने वर्ड से किल करते हैं. वेट तो लूज करना है भाई, लेकिन जिम विम मेरे से नहीं होता. अभी आपकी ही थॉट की एनर्जी आपने खुद के ही वर्ड से खत्म कर दी. कई बार थॉट्स और वर्ड्स बड़े मैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अरे पता है मैं जिम जाऊंगा तो देखना मैं क्या ही करके दिखाऊंगा, आई गेट ऑल माय 6 पैक एब्स एंड ऑल ऑफ दैट. कब जाएंगे? वन डे. एक्शन नहीं आ रही है. When your thoughts, when your words and when your actions, ये 3 चीजें जब एक साथ आ जाती है, you can manifest anything that you want. Right? Universal energies की बात करें, we are constantly bound by 2 energies. One is a law of attraction. हम जो सोचते हैं उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, वो हम हमारी तरफ खींचे जाते हैं. Wherever thought goes, energy flows, things manifest. जहाँ पर भी सोच जाती है, एनर्जी जाती है उस तरफ और वो चीजें होके ही रहेंगी. सिंपल चीज है, आप घर से बाहर निकले और आपने सोचा मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. आपने पहले क्या सोचा एक्सीडेंट के बारे में? वो चीज होके रहेगी. नया मोबाइल लेते हैं, क्या होता है? सबसे पहले सोच क्या, गिर नहीं जाना चाहिए, अरे टूट नहीं जाना चाहिए. तो आपने पहले उसको प्रोसेस किया, इमेजिन किया दैट इट इज गोना ब्रेक, इट इज दैट यू हैव गॉट वन स्टेप क्लोजर टू इट. Why can't you visualize this कि चलो ये फोन में लूंगा and I'm going to enjoy this phone, I'm going to take care of it, I'm going to watch movies, I'm going to enjoy. इसके बारे में कोई नेगेटिव थॉट सोच रही मत. दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी. वाइब्रेशंस क्या है? अब देखोगे कहते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त ही ऐसे रहेंगे इसलिए तुम ऐसे बनते जा रहे हो. बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाई यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर इन द कोर ऑफ इट. आपके अंदर गुस्सा भरा है, आप ट्रिगर्स खींच लाओगे. आपके अंदर दुख है, यू विल मीट पीपल हु विल ट्रिगर द मेलंकॉली. आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जो उसको ट्रिगर करेगा. सो आपके अंदर की जो फीलिंग क्या है, आपकी कोर वाइब्रेशन क्या है? हमारी कोर वाइब्रेशन 3 चीजों पे बेस्ड है, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने एक्सपीरियंसेस और हमारी कंडीशनिंग. अभी कंडीशनिंग बचपन से होती है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. बिलीफ सिस्टम हमारी खुद की है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि नहीं कोई चीज गलत है, वो आपका मानना है, तो आपकी सोच वैसी ही होगी. आप अब दूसरे एक्सपीरियंसेस ले ही नहीं पाओगे उस चीज में. हम कॉन्स्टेंटली वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम महसूस करते हैं अंदर. वी आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग. सो यूनिवर्सल एनर्जीज में 2 चीजों के बारे में आपको अवेयर रहना है. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एंड व्हाट आर यू फीलिंग इनसाइड योर हार्ट. अगर आप मन में डर लेके चल रहे हो तो वो डर मैनिफेस्ट होगा, हर चीज में रुकावट लाएगा, हर चीज में लिमिटेशन लाएगा.
Very true. So we have to be extremely careful about what we think and the way we act on our thinking. एब्सोल्युटली मैं बहुत कॉमन एक उदाहरण देता हूँ उस चीज के लिए. बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में. द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई पीपल कम टू अस इज मनी. Correct. पैसा नहीं है, Hmm. अबंडेंस नहीं आ रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं, कर्जे बढ़ गए हैं. पीछे क्या है इंटेंशन कि मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, फाइनेंशियली अबंडेंट चाहिए, वो इंटेंशन है. लेकिन कई लोगों को देखा है, कितना भी हो हाथ में, सब्जी कैसी थी, 50 रुपए, अरे तो 20 में मिलती है, चलो 30 में दे दो, राइट. या फिर कोई भी चीज मिलेगी तो अरे 500, अरे तो 200 में मिलेगी कहीं ना कहीं. जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, एक आप यूनिवर्स को अफर्म कर रहे हो कि मैं इस चीज को लेने की कैपेसिटी नहीं रखता. यूनिवर्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू इन द सेम थिंग. सेकेंडली, जब ऐसी चीजें खरीद के घर पे लाते हो, आप क्या एनर्जी ला रहे हो अपने लाइफ में. आपने कपड़े बार्गेन करके घर पे लाए, आपने सब्जियां बार्गेन करके घर पे लाई, आप उसको खाओगे, आप उसको पहनोगे, वो सामने वाले ने क्या एनर्जी से आपको दिया है, आप उस एनर्जी से बन जाते हो. सो हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के बाहर की एनर्जी से, अपनी एनर्जी से जुड़े रहते हैं. तो सबसे पहले वो बिलीव करो. आपको अगर रिचनेस एक्सपीरियंस करनी है तो सबसे पहले करो कि मैं काबिल हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खर्चे करो, नेगोशिएट. आप कहो कि चलो 300 में हो सकता है क्या, रिस्पेक्टफुली नेगोशिएट करके आओ उस चीज को, लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट दैट अबाउट इट, बिकॉज हर ये छोटी छोटी चीज मायने रखती है. ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. Right, absolutely. So I think you spoke something really nice. Energy alignment. तो अगर अपने जो एग्जाम्पल हमें अभी दिया है about bargaining, so if we want to manifest money, abundance, financial prosperity, so the first rule number one is you should never bargain, because you're kind of demeaning or underestimating your own power to manifest something really big and high in life. Absolutely. See, bargaining is one of the examples that I gave. Now there is something called as bargaining and negotiation. Bargaining is जब आप सामने वाले की एनर्जी को कट कर रहे हो, अरे नहीं ये तो आपकी 20 की चीज है, you're disrespecting it. Don't do that. Put forward a proposal. Can I get for 50? Can you give me for 20? Fair enough. बार्गेनिंग एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज है हमारी बिलीफ सिस्टम उसके बारे में. कई बार कैसे होता है कि अरे मुझे हॉलिडे पे जाना है, ये करना है, अफोर्ड करना है, लेकिन जब बात आती है प्लान करने की, अरे हाँ कितना खर्चा है, कितने पैसे, हम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी बिलीफ सिस्टम में हो नहीं पाएगा. तो आपकी ड्रीम्स कहीं और है, आपकी खुद के बारे में बिलीफ सिस्टम कहीं और है, आप कहाँ मैच करोगे उस चीज को, राइट. तो आपकी छोटी छोटी हरकतें बहुत मायने रखती है. ये दीज आर वेरी सटल एनर्जी. सटल एनर्जीज हमेशा मैनिफेस्ट करती है. Right. One way to become a millionaire. One way to become a millionaire, absolutely very true. मतलब छोटी चीजें देखिए, लक्ष्मी पूजा रखनी है घर पे ताकि लक्ष्मी घर पे आए, लेकिन फूल भी लाने हैं तो वो बार्गेन करके लाने हैं. तो आपने मैसेज क्या छोड़ा है कि मैं फूल तक नहीं खरीद सकता हूँ उस चीज के लिए जो मुझे आगे लेके जाएगी लाइफ में. Smaller examples. Very true. I think you've touched upon a really very important aspect. हम सभी को ये सीख मिलनी चाहिए इस पॉडकास्ट से, that never bargain. If it is not within your capacity, there is always another way to find out how to actually buy it. Respectfully negotiate and manifest. Yeah. Saurabh, मुझे एक क्रिस्टल बाय करनी है. Can you recommend something to me? Absolutely, I can do. For which मुझे थोड़ा सा जानना होगा कि आपको exactly क्या challenges है, आपके goals क्या है, आपको किस लिए crystals लेने हैं, और crystals लेने के बाद आप किस हद तक उसके साथ वर्क करने की intention और capacity रखते हो. So we can take this private conversation and we can definitely work on this for you. Okay, and where can we meet to do that? We can meet right over here, Kollava Studio. यहाँ पर हम लोग पर्सनल कंसल्टेशंस ऑफर करते हैं. यहाँ पर हम पूरी एरिया ऑफ सर्विसेज देते हैं. जैसे अगर आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आपको पता है कि आपके गोल्स क्या है, आपको अगर पता है कि आप कहाँ पर अटक रहे हो, तो वी कैन डायरेक्टली गाइड यू आपको कौन से क्रिस्टल्स यूज करने हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कहाँ पर है, आपको खाली सिचुएशन पता है, तो हम आपको पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, वन ऑन वन. हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भी है यहाँ पर जो आपको काउंसिल करेगी, या फिर आप मुझसे भी डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपनी लाइफ सिचुएशंस के साथ वर्क कर सकते हो. अगर आपको स्पेसिफिक चीजें जाननी है लाइफ में, जैसे किस टाइम पे क्या चीज होगी, क्या मुझे ए चीज करनी है, बी चीज करनी है, तो हमारे यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग भी होती है, विच यू कैन अवेल. वो इंस्टेंट गाइडिंग टूल हो जाता है. श्योर. सो हाउ डू वी ब्लेंड क्रिस्टल्स विथ एफर्मेशंस? सो अंडरस्टैंड, अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली जहां पर आपका ध्यान जाता है, जिस भी चीज को हम अटेंशन देते हैं, राइट, वो चीज हमारे लाइफ में
मैनिफेस्ट होती है। अभी कई बार लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, हाँ। राइट? बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि घर में झगड़े हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन सबसे पहले क्या होता है ना, कई सारे लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ, देयर इज वन थिंग कॉमन आई सी, गिव मी सम क्रिस्टल्स जो मेरी सिचुएशन चेंज कर दे। ओके। मतलब उन्होंने खुद की लाइफ की अथॉरिटी किसी ऐसी चीज को दी है जो उन्होंने अब तक इस्तेमाल भी नहीं करी है, ओके। राइट? जब हम खुद की अथॉरिटी को गिव अवे करते हैं, हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का एनर्जी खत्म हो जाती है। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस एक प्रोग्राम है जो हम अपने माइंड को देते हैं। हमेशा सुबह उठते ही 10 बार मैं अपने आप को यही कहूंगा कि माई बॉडी इज एट पीस, आई एम काम एंड आई एम इन्वाइटिंग न्यू पीपल, न्यू रिसोर्सेज इन माई लाइफ एवरी डे। ओके। ये मैं अपने माइंड को प्रोग्राम दे रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की प्रोग्रामिंग है, तो सारी चीजें मेरी लाइफ में वैसी हो जाएगी। आई एम मैनिफेस्टिंग इट। Correct. That is a law of attraction that I'm creating around with me. Sure. And through my affirmations, I'm speaking the language towards which I want to head, towards what I want to manifest. Okay. क्रिस्टल्स कहाँ पे काम आते हैं? क्रिस्टल्स एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो मुझे स्टेबिलिटी देती है, जो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंसेस को निकालने में हेल्प करती है। जो भी एनर्जीज मुझे और मेरे गोल को एक दूसरे से दूर रख रही है, जो भी चीजें वहाँ पे इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रही है, उसको एक ट्रिगर मिलता है क्रिस्टल्स की एनर्जी से, जो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने में मदद करता है। बट वो कैसे होता है? मेरे कॉन्शियस इंटेंशन से, मेरे कॉन्शियस डिसीजन से और मेरे एक्शंस, इन 3 चीजों से। Okay. So crystals play a very important role not only in law of attraction but also affirmation and also understanding the vibrations really well. एब्सोल्युटली, क्रिस्टल्स के साथ काम करने के लिए ये सारे एलिमेंट, सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, जो सब सारी चीजें एक साथ लाके आपके क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स आपको बहुत जल्दी से मोर इफेक्टिवली दे सकते हैं। ओके। और ऐसी कोई साइंस है या फिर लॉजिक है क्रिस्टल्स के बिहाइंड कि कोई ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ही हमें क्रिस्टल्स बाय करने होंगे? अभी ये भी एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। अभी इंडिया में क्या होता है, हमें ज़ोडिएक और एस्ट्रोलॉजी ये चीजें सब पता है। जब कोई पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। अभी एक बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एक साइंस है कि जब आपका जन्म हुआ है, उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या पोटेंशियल एनर्जीज आ सकती है, किस वक्त क्या, परफेक्ट कैलकुलेटेड मैथ है। बट उसके परे हमारे पास एक चीज होती है विच इज कॉल्ड फ्री विल। फ्री विल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के कुंडली में लिखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ेगा ये आदमी, आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनेगा और उसकी लंबी उम्र रहेगी, लेकिन उस इंसान ने डिसीजन लिया कि अरे मेरे तो इसमें बहुत ज्ञान लिखा है, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, और कहता अरे मैं तो बहुत लंबी उम्र जीऊंगा, चलो अभी 20 साल का हो गया, मैं कूद जाता हूँ बिल्डिंग के ऊपर से, व्हाट विल हैपन? फिर हम क्या कहेंगे? क्या एस्ट्रोलॉजी गलत थी? नहीं। इस इंसान ने खुद की एक्शन से, खुद की ईगो से, खुद की डिसीजन से अपनी एक फ्री विल एग्जीक्यूट की, जिससे काफी चीजें चेंज हो गई। सो जब बात आती है ज़ोडिएक साइंस या किसी चीज की क्रिस्टल्स को लेकर, वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपनी करंट लाइफ सिचुएशन के हिसाब से चीजें करिए। बिकॉज आप भले कैंसेरियन हो, लेकिन आप में शायद वो इम्बैलेंस ट्रेट्स नहीं है, यू आर ऑल बैलेंस्ड अबाउट इट, तो आपको वो क्रिस्टल्स देखी क्या ही जरूरत है, राइट? सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आपको क्रिस्टल्स यूज करने हैं, ज़ोडिएक से ज्यादा इफेक्टिव वो रहेगा कि आप अपने पर्टिकुलर पर्पस से करिए। ज़ोडिएक ब्रेसलेट्स कब काम आते हैं? आपको किसको गिफ्ट करना है, यू वांट टू गिव अ बेस्ट विश टू समबडी, या आपको जस्ट एज एक्सेसरी क्रिस्टल्स पहनने हैं, या फिर आपको अपने ज़ोडिएक के एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लियो को करेज और कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना है तो आई रिकमेंड टाइगर स्टोन सिट्रेट। या फिर कंसेरियन हो तो इमोशनल बैलेंस करनी है, ग्राउंडिंग लानी है तो ग्रीन एवेंचुरिन एंड रेड जैस्पर। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हैं अगर आपका वो इंटेंशन है। लेकिन अगर आपके स्पेसिफिक गोल्स अलग है, डोंट वरी अबाउट ज़ोडिएक, विल वर्क ऑन कस्टमाइज्ड कॉम्बिनेशंस। सुपर। अगर एक बिगिनर को क्रिस्टल्स बाय करने होंगे तो किस प्रकार के क्रिस्टल्स वो बाय कर सकते हैं? अभी हर एक क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर किसी को क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो क्लियर क्वार्ट्ज उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है लाइफ में तो ग्रीन एवेंचुरिन बेस्ट है। अगर कोई कम्युनिकेशन एनहांस करना चाहते हैं तो लपीज बेस्ट है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, लव और हार्मनी के लिए रोज क्वार्ट्ज होते हैं, ग्राउंडिंग कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर स्टोन होते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंडिंग आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, आप उस प्रकार से क्रिस्टल्स ले सकते हो। इनफैक्ट कई बार
आप अलग अलग क्रिस्टल्स को कंबाइन भी करके चूज कर सकते हो. ओह रियली, Yes. दैट्स नाइस. तो अगर कॉम्बिनेशन होगा क्रिस्टल्स का तो उससे हमें क्या बेनिफिट होती है? एक सिंपल चीज देता हूँ. आप खाने में एक स्पाइस डालो, उसका फ्लेवर आ जाता है. आप 4-5 स्पाइसेस मिक्स करो, फ्लेवर और अलग एनहांस होता flavor, है. yeah. नॉट ऑलवेज, लेकिन एक चीज है कि जब भी हम क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत प्रिसाइज साइंस होता है कि कौन से क्रिस्टल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. Got it. कई सारे क्रिस्टल्स एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी कैंसिल करते हैं. तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2-3 क्रिस्टल्स आप मिक्स कर सकते हो और कौन से नहीं करने चाहिए. इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप किसी को जानते हो इज एक्सपर्ट एट क्रिस्टल्स, वर्क विद देम, या फिर एटलीस्ट एक गाइडेंस लीजिए उस चीज को समझने के लिए. बट कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स आपको काफी ज्यादा इफेक्ट देते हैं, काफी ज्यादा चीजों को एक डीपर लेवल पर आपको शिफ्ट करने में मदद करते हैं. ओके ग्रेट. तो अगर किसी को क्रिस्टल बाय करनी होती है तो उसके साथ किस प्रकार के एनर्जेटिक चैनलाइजेशंस करने पड़ते हैं? सिंपल चीज, आप क्यों क्रिस्टल्स ले रहे हो, आपको क्या चेंज देखना है अपने लाइफ में, आपको क्या बदलाव लाना है अपने लाइफ में, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक गोल, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी है. सेकेंड, क्रिस्टल एक एक्सटर्नल एनर्जी है. मैं हमेशा कहता हूँ क्रिस्टल लेना मतलब आपने जिम की मेंबरशिप ली ऐसे हो गया. केवल क्रिस्टल्स लेके कुछ नहीं होगा. जिम की मेंबरशिप लेने के बाद आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितना डाइट कर रहे हो, कैसे रेस्ट कर रहे हो, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसी प्रकार से जब आप क्रिस्टल्स लेते हो आप अपने गोल्स की तरफ कितना वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर कितना अवेयरनेस ला रहे हो, आप कितनी एक्शन ले रहे हो, आप कितना अपने आप को उस पैटर्न से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज होती है. सेकेंडली, कई सारे लोगों के इंटेंशंस जो होते हैं वो दूसरों को रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिस्टल्स लेना चाहती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड मुझे लव करे, ताकि मेरी मदर इन लॉ चेंज हो जाए. एक अवेयरनेस रखनी है, हमारे क्रिस्टल्स पहनने से किसी और के बदलाव नहीं आएंगे, किसी और के विचार नहीं बदलेंगे. Nobody else is going to start behaving or deciding things differently just because you started interacting with energies, though they are your intentions. इसलिए हमेशा अपने गोल्स और इंटेंशंस ऐसे सेट करो जो आपके हाथ में है, जो आपके कैपेसिटी में है कि आप उसके बारे में कुछ कर सको. सो एक बार आपने गोल सेट कर लिया, एक बार आपने सारी चीजें इकट्ठा की, तैयारी कर ली अपनी काम को अचीव करने के लिए, फिर टेक्निकली अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस, ये 2 स्ट्रॉन्ग टेक्निक में देता हूँ. अफर्मेशंस क्या है? जो भी हम 10 बार अपने आप को कहेंगे दिन से, सुबह उठने के बाद से, दैट बिकम्स अ प्रोग्राम ऑफ योर माइंड. तो कई सारे लोग बहुत नेगेटिव अफर्मेशंस करते हैं, पता है, बिना कुछ कहे. सिंपल चीज दिखती है, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं ना कंसल्टेशन के टाइम पे ही, मैं 2 साल से इतनी बीमार रहती हूँ ना, मुझे तो कभी कभी लग रहा है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं. अभी अगर आप मन में सोच रख रहे हो कि मैं इतनी बीमार हूं कि अपनी जिंदगी को खत्म करूं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी बॉडी हील हो, कैसे? आपकी बॉडी को प्यार की जरूरत है, आपकी बॉडी को एक्सेप्टेंस की जरूरत है. सो सबसे पहले है कि आपके अफर्मेशंस, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, राइट? सो अफर्मेशंस वही दीजिए जो आपको मैनिफेस्ट करनी है. सेकेंड है विजुअलाइजेशन. कई बार हम बैठते हैं और हम गलत सोच में चले जाते हैं. लॉट ऑफ पीपल हैव पैटर्न ऑफ ओवरथिंकिंग, वी आर सिटिंग ओवर हियर, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसे उसको जवाब देने चाहिए था. यू आर थिंकिंग ऑल नेगेटिव थिंग्स. और कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं जो हो चुकी है, बीत चुकी है, हमारे हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं है. विजुअलाइजेशन क्या टेक्निक है? यू क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू हैपन. आपको हॉलिडे पे जाना है, लंदन जाना है, क्लोज योर आईज, विजुअलाइज आप लंदन में ऑलरेडी हो, उधर के कोई लैंडमार्क पोजीशंस, लैंडमार्क स्टैचूज है, यू आर ऑलरेडी देयर. आप एंजॉय कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, खुद को विजुअलाइज करिए, फ्लाइट में जा रहे हो, आ रहे हो, वो विजुअलाइजेशंस आपके काम आएंगे. तो अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस 2 स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है क्रिस्टल्स लेने के बाद उसके साथ वर्क करने की और अपने गोल्स को, इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने की. इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एब्सोल्युटली. ओके. मैंने ऐसे सुना है कि क्रिस्टल्स बहुत बड़े होते हैं. ओके, उनको कारीगर जो रहते हैं वो एक शेप देते हैं और उनको अच्छे फॉर्म में लेके आते हैं, सो दैट दे आर प्रेजेंटेबल, they become energetic and they can heal human life. Absolutely. So what do you have to say about it? Absolutely. See, shape जो होता है man made है. अभी जब हमारे पीछे कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं, लैब्राडोराइट है, क्लियर क्वार्ट्ज के बड़े टावर्स है, वो एमेथिस्ट है, रॉ फॉर्म में इस तरह से आते हैं. उसके ऊपर जो शेप्स देते हैं, फैसेट्स होते हैं, उसको बीड में बना दिया, किसी और शेप में बना दिया, वो शेप मैन मेड होता है, राइट? हीलिंग में डायरेक्टली शेप्स की कोई मायने नहीं होते. तो बहुत सारे लोग ना हमारे पास ये भी आते हैं, अरे हमारे बीड के ऊपर क्रैक है, इसके ऊपर फ्रैक्चर है, ये थोड़ा टूट गया है, हमें बदली करके दो, इसका असर नहीं होगा.
जो चीज हमने खुद तोड़ी है हाथों से और उसको फिर मैन्युअली शेप दिया है, उस चीज का आगे और टूटने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, एनर्जी खराब नहीं होती है, Okay. राइट? तो ये बात सही है कि स्टोन्स अलग अलग शेप में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक स्फटिक रखा हुआ है, बहुत ही रॉ शेप में है, बहुत ही अनफिनिश्ड शेप में है. अभी इसको जो चाहे शेप दे दीजिए. Okay. इसको आप टावर बनाइए, इसको आप बॉल बनाइए, इसको आप बीड बनाइए, वॉट एवर. ऑल द शेप्स आर मैन मेड, ऑल द शेप्स आर गिवन बाय अस फॉर दैट मैटर. Okay. शेप्स से एक बात मुझे याद आई, शेप्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, Okay. राइट? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग शेप्स अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं Okay. किसी न किसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, विच इज अ डिफरेंट साइंस. अगेन, जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं, जब हम किसी को कंसल्ट करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको सारी कॉम्बिनेशंस या उनको क्या रेमेडीज है वो उस हिसाब से देते हैं. ओके. तो अगर आपने कहा कि इट्स ह्यूमन बीइंग्स हु काइंड ऑफ गिव शेप टू अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, तो हमारी एनर्जीज उसमें आ जाती है. तो अगर वही क्रिस्टल हम घर लेके आए तो किसी और इंसान की एनर्जी उसमें ऑलरेडी है, और वही अगर क्रिस्टल कोई और लेके जाए तो उसकी एनर्जी उसके साथ एंटैंगल हो गई है, तो अभी हम क्या करें? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत सही सवाल पूछा आपने दीप्ति. क्रिस्टल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. इनफैक्ट आप किसी से क्रिस्टल्स खरीद रहे हो तो कितने लोगों ने उसको छुआ है, कितने लोगों ने उसको तराशा है, बहुत सारी चीजें गई है. क्रिस्टल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. आपके पास कभी भी कोई क्रिस्टल्स आता है, कोई गिफ्ट करे, आप खरीद के लाओ, आपको कहीं मिले, उसको क्लेंस करना है. सबसे पहले उसकी एनर्जीज को निकालना है. क्लेंस करने के दो सिंपल तरीके हैं. एक है नमक, जो अपना घर का साधारण नमक होता है, उसके पानी में 10 से 15 मिनट रख दो. एक चीज वो हो गई. दूसरा है चांद की रोशनी. वेरी नाइस. फुल मून नाइट, पूर्णमासी के दिन पे अपने क्रिस्टल्स को ऐसे जगह पे रख दो जहां पर चांद की रोशनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर पड़े. ये दो चीजें आपके क्रिस्टल्स को क्लेंस भी करते हैं, एनर्जाइज भी करते हैं. और बाकी कई सारे तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थ, खुली जमीन, लॉन हो, क्रिस्टल्स को वहां पे रख दीजिए. बारिश आ रही है, बारिश के नीचे क्रिस्टल्स को रख दीजिए. तो एनर्जीज हर एलिमेंट में है. अपने अर्थ नेचर के जो भी एलिमेंट्स है उसमें आप अपने क्रिस्टल्स को थोड़ी देर एक्सपोज करके अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हो. लेकिन क्लेंजिंग बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरों की एनर्जीज अपने क्रिस्टल्स के साथ में न ले आओ. Lovely. So there are two ways of cleansing any crystal. One is with salt water. Second one is just keeping the crystal under the moonlight. Right? Absolutely. Okay, great. So it was really nice, understanding how crystal energy works with us. Now my last question. What are the myths which you must have heard or your clients in consultation ask you about crystals? Plenty. We need to create part 2, 3, 4, 5, 6 of this podcast to cover all of those myths. General myth that people have about crystals. One, they associate crystals with religious practices. कि क्रिस्टल्स पहनने के बाद हमें नॉनवेज खा सकते हैं क्या, अल्कोहल पी सकते हैं क्या, पीरियड्स के टाइम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं क्या, किसी का देहांत जैसी चीज हुई तो वहां जाने के लिए क्रिस्टल्स पहन सकते हैं क्या. आई रिकमेंड, क्रिस्टल एक एनर्जी है. जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो वो आपके शरीर का हिस्सा होता है. कहीं पर भी हम जाते हैं, घर पे आने के बाद खुद को क्लेंस करते हैं, नहाते हैं, तो उसके साथ आपके क्रिस्टल भी क्लेंस हो जाते हैं. ऐसे बहुत सारे मिथ्स ये भी है कि मुझे कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, मुझे कौन सा क्रिस्टल सूट नहीं करेगा. अभी समझिए, क्रिस्टल्स बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं. क्रिस्टल्स वास्तु में भी यूज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होते हैं, एनर्जी वर्क में भी यूज होते हैं, पेगन रिचुअल्स में भी यूज होते हैं. आप क्रिस्टल्स किस हिसाब से ले रहे हो, किस पर्पस ले रहे हो? अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो वहां पर वो चीज सही है. लेकिन अगर आप मेडिसिन के दौर पर ले रहे हो तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीजें सोचने की जरूरत नहीं है. वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे उस चीज में. जैसे कोई कहता है कि मेरा मंगल है तो मुझे ये कलर नहीं पहनना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपकी ब्रेसलेट में वो कलर है, लेकिन हमने आप ब्रेसलेट अलग पर्पस से बनाया है, तो वहां पर वो चीज करने की जरूरत नहीं है. दूसरा मिथ है, मेरे क्रिस्टल में क्रैक्स आ गए, फ्रैक्चर्स हो गए, अरे काम नहीं करेगा. जो चीज नेचर ने बनाई है उसको हमने तोड़ के हमने तराशा है, फिर उसकी एनर्जी कहाँ से खत्म होगी? उसमें आगे जाके नेचुरली क्रैक पड़ा तो कहाँ एनर्जी उसकी खत्म हो रही है? सेकेंडली, बहुत सारे लोगों की गिमिक्स क्या होते हैं कि आपको हर 3 महीने में क्रिस्टल्स बदलने हैं. अब वो हीरे होते तो क्या बदलते हर 3 महीने में? क्रिस्टल्स आर इटर्नल एनर्जी. क्रिस्टल को बनने में करोड़ों साल लगे हैं अर्थ के अंदर. हमारे 1-2 महीने पहनने से उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है. कैन वेयर योर क्रिस्टल्स लाइफ लॉन्ग. ऐसे कई सारे मिथ है. बात करने गए तो दिप्ति शाम निकल जाएगी. तो अगर अभी अपने जो क्रिस्टल टूटने के बारे में जो बताई बात, तो अगर क्रिस्टल्स टूट भी गए
तो हम क्या कर सकते हैं? सो इसमें दो चीजें हैं, ओके। एक चीज है कि क्रिस्टल्स जेन्युइनली बहुत जब नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या उनका काम आपकी जिंदगी से खत्म हो गया है तो वो टूटते हैं, Okay. या फिर कई बार टेक्निकल रीजन से टूटते हैं ना, हाथ से गिर गया टूट गया, ऐसी इलास्टिक खराब हो गई टूट गई। अब फर्क कैसे जानो? अगर उन क्रिस्टल्स का पर्पस खत्म हो गया है या उन क्रिस्टल्स में कोई ऐसी एनर्जी आ गई है जो आपके पास वापस आना नहीं चाहती है, तो ऐसे टूटेंगे कि आपको बीड्स भी नहीं मिलेंगे कभी। अच्छा। लेकिन अभी बैठे बैठे समझो मेरा ब्रेसलेट खुल गया, इलास्टिक टूटा, मेरे पास बीड्स है, तो मैं उस बीड को इकट्ठा करके वापस उसको बनवा के आई कैन वेयर इट। ये बात रही ज्वेलरी की। अभी बात करते हैं क्रिस्टल्स की, डिवाइसेस की। हम क्रिस्टल के पिरामिड्स रखते हैं, क्रिस्टल के कॉइन्स रखते हैं, क्रिस्टल्स के गणेश जी रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं। अभी हर एक शेप का अलग एक मतलब है। जैसे बॉल है, अभी बॉल का मतलब क्या है? सभी डायरेक्शन में इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एक चीज। या फिर ये पेंसिल टावर है, ये क्या कर रहा है? सारी एनर्जीज को एक तरफ चैनलाइज कर रहा है। अगर ऐसे डिवाइस की नोक टूट जाती है तो वो मैं उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। एक सिंपल उदाहरण है, आपके पास एक छुरी है, सोने की बनी हुई है। अगर उस छुरी की धार चली जाती है तो आप उससे सब्जी तो नहीं काट पाओगे, लेकिन सोना फिर भी काम में आता है। तो उस क्रिस्टल की एनर्जी के लिए आप वो क्रिस्टल यूज कर सकते हो, लेकिन उस रिचुअल के लिए मत यूज करिए जिसके लिए वो पॉइंट बनी है। Got it. Perfect. I think today we are completely enlightened with what Saurabh said. He's gave us such lovely information about what crystal healing is, and it's great to know that crystal is not just something that can be kept. Obviously, when you take those energies and start manifesting our wishes into reality with the help of crystal. And it was really nice talking to you, Saurabh. Pleasure. It was so pleasure. nice meeting you and understanding what Cold Lava Crystal Studio also does. So many thanks for coming on our show today. Thank you so Thanks much. a lot. It's been a pleasure. Yeah, same here. So Cold Lava Crystal Studio is not only for the spiritual enthusiast, but it is also for beginners. So anybody who's seeking for any kind of help on crystal healing, feel free to get in touch with Saurabh or with his entire team of Cold Lava Crystal Studio. It was so nice meeting him and talking to him about this therapy of crystal healing. And this is a must-watch episode for all the spiritual healers and also for the beginners. Stay tuned to watch more and know more about such spiritual updates on DK Talkies.